see. No, you can physically see. And obviously, the industrial design is very important for the products which are bought by the consumers rather than the industry. Okay. If a car is there, a car is buying auto components which are about anywhere depending on the type of car. The total components in a car are ranging from 10,000 to 20,000. तो आप बोनट खोलते हैं, उसके बाद में जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो कितने फैंसी हैं कि नहीं है, इससे आपको उतना नहीं होता जितने कार कितनी फैंसी है. कार इज कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर्स को ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ें, ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन की चीज़ें लेना अच्छा लगता है. And also the people get used to some same kind of a design. They look forward to a change in the design of the product they buy. आप कॉफ़ी मग्स लेने जाते हैं, आप कहते हैं अरे ये बड़ा अच्छा है, इस बार है ना ये वाला लेते हैं, इस बार इस तरह का पानी पीने का ग्लास लेते हैं. वैसे जो है बहुत वी आर फेड अप, जो पहले के ग्लास चल रहे हैं पूरे इतने सालों से घर में, और थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए हमें डिज़ाइन. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन, पीपल्स साइकोलॉजी, दैट दे वांट ए चेंज इन द. So design is the ornamental or aesthetic aspects of a useful article. How you can make it. If you say that there is a perfume, and a perfume is the quality of the perfume is so good that it is a few thousand rupees, uh, which you can put in a what is that cough syrup bottle, and you say इसमें 10,000 रुपये का परफ्यूम है, कफ सिरप बॉटल में दे रहे हैं. Will anyone buy it in 10,000 rupees? कोई खरीदेगा उसको? 10,000 रुपीज़ के परफ्यूम को आप कहते हैं मैं तो नो प्रॉफिट बेच रहा हूँ उसको. तो 10,000 रुपीज़ का परफ्यूम है, चैरिटी में 10,000 का दे रहे हैं एट जीरो प्रॉफिट. Will anybody buy it? No, sir. अच्छा, आप कहते हैं कि ये 500 का परफ्यूम है और 1,000 रुपीज़ का एक ब्यूटीफुल स्प्रे वाला वो है उसका कंटेनर, तो आप कहेंगे इट इज़ अ फ्रेंच परफ्यूम. तो 1,000 रुपीज़ का है, उसमें 200 रुपीज़ का जो लिक्विड है दैट इज ओनली वर्थ 200 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 10,000. 1,000 का परफ्यूम बिकेगा या नहीं बिकेगा? तो ये है कि किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए. तो the products which are branded products which have got some snob value for them, which are people have got exhibitionist tendency. People want to show off. People want to show to others about what they have. आपने जो नया रिस्ट वॉच लिया वो है कि 50,000 रुपीज़ का है, तो आप कहीं बैठेंगे कहीं पर, तो उसको आपको हाथ को दाएं बाएं गोल घुमाएंगे कि कोई भी देखो तो मेरा 50,000 रुपये का रिस्ट वॉच है. तो आपको दिखाने का भी बहुत तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. यू वांट टू शो टू पीपल. तो जो चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए होती हैं, जैसे कि यू फील सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ प्राइड कि देखो मेरे पास ना इतना महंगा, इतना अच्छा इस ब्रांड का है, तो उसको आप उसमें जो होता है डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो what is the meaning of the design? It is means design means only the features of shape, configuration, pattern, ornament, composition of lines or colors or combination thereof. And finally it must have visual appeal. तो जो जिस डिज़ाइन की जितनी अच्छी विजुअल अपील होगी वो उतना ही होगा इम्पोर्टेंट, अच्छा माना जाएगा. एंड पीपल हु आर that there is one institute called NID, National Institute of Design, अहमदाबाद में. Also you must be aware of it. तो NID में इट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन. वहाँ पे जो उनका 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन BDES, IIT दिल्ली ने BDES चालू कर दिया था कुछ साल पहले, if I remember correctly. So they specialize in creating new designs, and they study for 4 years that specialized subject of developing, creating
new design. Yesterday I showed you a glimpse of it. Earlier it was a circular pencil. It was easy to cut it into a hexagonal cross section. It would be more difficult. So we, only this circular cross section pencils were sold in the market. Then somebody thought, can we make it a different design which will look more attractive? People are fed up of this same type of pencils. Earlier they could only change the color, but now they could change the design. So hexagonal pencil. Then subsequently about 15, 20 years, I found in the market there is a pencil which was a triangular pencil. And people are, so triangular pencil. So if we are having a conference, we say, let us distribute this triangular pencil. क्योंकि it is not so common. तो कॉन्फ्रेंस के बैग में देते हैं ना पेंसिल इरेजर शार्पनर एंड ऑल दैट थिंग, तो मैं भी ट्रायंगुलर पेंसिल देता हूँ. तो जो भी नई चीज़ आती है नए डिज़ाइन की, दैट हैज़ गॉट इट्स ओन अट्रैक्शन एंड पीपल टेंड टू बाय इट एंड कंपनीज कैन सेल एट ए हायर higher price. The cost is the same, but you make more profit by selling at higher price. Then water bottles. You see that बिस्लरी का बॉटल होता है और जो ये एक्वाफिना का बॉटल होता है, इतने सारे जो बॉटल होते हैं सबका डिज़ाइन अलग अलग होता है, सबका डिज़ाइन रजिस्टर्ड डिज़ाइन होता है. हर कंपनी जो अपना डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाती है बॉटल को, उनकी तो दे आर सोल्ड इन मिलियंस. So when the water bottles are sold in millions, so they they register the design, and when they register the design, they use the same design, and there's so many designs of bottles uh, for you know the RO water, drinking water, and more about the hard drink bottles. If you are there at an airport in the duty free shop in Delhi T3, you can enter the shop without any problem. It's not only that the people who are returning from abroad can enter the shop, you can also enter the duty free shop. Of course, when you buy it, you have to have some proof of your having, coming, returning from some other country, etc. The passport number and all those details. Otherwise, you can see all these things. So, there are liquor shops, you see very large variety of hard drink bottles, because when people take hard drinks, they would like to have, the drink in a more attractive design bottle. The same is true for the coffee mugs. There are different shapes. You can see this pin, jam clip, and pin holders. It is a square cross section or the circular cross section. There was a telephones. This top right corner, this black telephone was the uh, uh, telephone which was made by Indian Telephone Industries in Bangalore, which was a public sector organization. And you had to buy this telephone only if you take a connection. There was no concept of competition law of India, Competition Commission of India in those days. It was a public sector monopoly before 1991 and practically all the major sectors. And if you see the movies of 1970s, 1980s, you'll see that bottom, the white telephone, jo, the rich person in the movie, it could be the father of the hero or father of the heroine or the don. They would have this kind of a more design, especially designed telephone. They were available in the market internationally. So that time, even if you have a telephone in your house, you could not have a parallel connection to this by having a wire, going to another room, and you could not, keep a parallel telephone connection in your house. I remember I was warden Nilvi Hostel, and I wanted, telephone, and suppose I'm in the bedroom and the telephone rings in the study room. So how do I know in the night there is some problem and somebody is ringing up? At that time there was no mobile phone, so I needed the connection, and I asked our IIT electrician कि सब कमरों में सॉकेट और प्लग लगा दे तार का कनेक्शन करके. उसने लगा दिया सारे.
एंड आई हैड जो टेलीफोन का वायर होता है उसमें मैंने प्लग लगा दिया, तो उसको इधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं, बट इट वाज ऑल नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लॉ। सो अगर आपको टेलीफोन खराब आया हो गया, आपने बुलाया टेलीफोन डिपार्टमेंट के आदमी को, उसने कहा आपने इसका पैडल ले रखा है, तो हमने नहीं, पैडल नहीं है, सब प्लग है, हम जब सोने जाते हैं तो उस कमरे में लगा लेते हैं। तो दिस वाज द सिनेरियो दैट monopoly system in the country of the government, but now things are much different. You can have the wall clocks of circular, hexagonal, octagonal, a wall clock along with other metallic designed surroundings, or this type of a wall clock, different types of. Sir, one question. So Yeah. ये design then one अगर register कर लेता है, you cannot copy this design. Yes, you cannot produce a wall clock with that design. So पर ऐसे तो कितने wall clock हैं? How can we check कि each and every design is available? If somebody wants to make a new wall clock. आपको देखना पड़ेगा वॉल क्लॉक के डिजाइन के रजिस्टर्ड कितने हैं और उसमें इनफोर्स कितना है। अच्छा, दूसरा है कि जो डिजाइन होता है, इट इज डिजाइन रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 10 इयर्स। ओके सर, ठीक है, 10 साल के बाद में बना लीजिए वो वाला। अच्छा। और दूसरी बात है कि डिजाइन इज कंसीडर्ड एज ए वीकर प्रोटेक्शन देन पेटेंट, बिकॉज इन डिजाइन ये जैसे ऑक्टागोनल है ना, तो ऑक्टागोनल का आपने हेक्सागोनल बनाया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया डिजाइन को, तो मतलब है कि अनलेस यू हैव द एग्जैक्टली सेम डिजाइन, यू आर नॉट इन्फ्रिंजिंग समबडी एल्सेस डिजाइन। ओके, करेक्ट। बट हाँ, बाय चेंजिंग माइनर थिंग्स यू कैन नॉट रजिस्टर योर ओन डिजाइन एज ए न्यू डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर जैसे हाँ, सर जैसे ये ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी में डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन होते हैं, तो वो भी पेटेंट वो भी डिजाइन होता है? नहीं, अगर वो जो गोल्ड स्मिथ है, हाँ, और उसको आईपीआर की और डिजाइन की और डिजाइन रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज है, तो वो अपने डिजाइन को रजिस्टर कर लेगा। पर जैसा मैंने भी बोला कि जो डिजाइन होते हैं रजिस्टर किया आपने, तो उससे थोड़ा सा चेंज करके कोई भी चीज बना सकता है। ओके, ठीक है, तो उसमें आपको, बिकॉज देन यू आर नॉट इन्फ्रिंजिंग समबडी एल्सेस डिजाइन, बट विद ए माइनर चेंजेस यू कैन नॉट रजिस्टर ए डिजाइन, क्योंकि तो कहेंगे तो सिमिलरिटी है काफी कुछ, 90% सिमिलरिटी, 80% सिमिलरिटी है, तो आप उसको अपना रजिस्टर नहीं कर सकते अपने नाम से, नॉवेल्टी नहीं है उसमें। ओके, बट बना सकते हैं? बना सकते हैं, आप रजिस्टर नहीं कर सकते। यू कांट से कि ये मेरा नया डिजाइन है और इसको मेरी इसके ऊपर डिजाइन रजिस्टर्ड है, and I can transfer my design rights to any company to make the product of that design. You cannot register that design which is similar, maybe 80%, 60%, 70, 80% similar to other designs, but with 10-20% changes in the existing registered design, you can make a product. And that is the reason it is known as weaker protection. Concept समझ आया weaker protection का? कि थोड़ा change करो, आपने अपना कहा कि हम तो ये बना रहे हैं, it is not your design, your registered design is something different. We are not making exactly that kind of product with that design which is registered by somebody else. Okay, right. पर प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, मेनी ऑफ देम, एंड जो कम एजुकेटेड होते हैं वो एक कंसेप्ट हिंदी में बोलते हैं, दो शब्द भेड़ चाल, अरे ये बड़ा अच्छा है, ऐसा बना लो, तो मार्केट दे लेते हैं, वैसा बना लेते हैं, और बाद में लिटिगेशन में फंस जाते हैं और उनकी कंपनी बंद हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो इतने जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स होते हैं वो लीगली हर चीज़ में सिस्टम में ठीक हों, इसके लिए उनको खुद को ही, उन्हीं की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। किसी का अच्छा लग गया आपको डिज़ाइन, वैसा बना लिया आपने, और बाद में मालूम पड़ा कि उसने आपको कोर्ट में ले गया, तो सबसे पहले होगा आपको प्रोडक्शन बंद हो गया। करेक्ट। और दूसरा होगा कि आपको जो पेनल्टी लगेगी, डैमेजेस जो होंगे वो अलग से लगेंगे। और आपको मान लीजिए कि 1 साल 2 साल चला तो आपने कुछ नहीं कर पाया ना मशीन से, जो डाई खरीदी थी, जो डाई खरीदी थी वो बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब बेकार हो गया आपकी। 2-3 साल में आपका इतना लॉस हो गया कि आपको तो फायदा नहीं हुआ। करेक्ट। तो दीज आर द इश्यूज। बट अगर 60-70% मैचिंग है, बट फिर वो केस नहीं कर सकता मैं?
If it is not नहीं 100% नहीं, match. वो तो भाई आपका, आप उसका एग्जैक्टली डिजाइन बनाएंगे तो इन्फ्रिंजमेंट है। अच्छा, ओके, 100% में कॉपी है। हाँ, और ओके, उसके बाद में 95%, 99% और 88%, ये जो चीज़ है, ये दोनों के जो आईपी अटॉर्नीज होंगे, वो डिफेंडेंट वाला ये देखो ये तो दिखता भी नहीं है, इट इज नॉट विजिबल टू द आईज, डिजाइन डिफरेंट है। दूसरा क्या कि देखो ये अगर इसको ऐसे एंगल से देखेंगे तो दिखेगा, तो वो दोनों अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे। उसके बाद में जज को जो ठीक लगता है वो जजमेंट दे देगा जज। और जो एक कोर्ट में मिलता है यू गो टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में मिलेगा। अगर आप दोनों में से कोई पार्टी हैप्पी नहीं है तो विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने जो कहा उसके बाद में यू हैव द राइट टू अपील टू द बेंच। पर ये छोटी मोटी चीज़ों के बेंच तक नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते ये सब चीज़ें। पर हमें लीगल प्रोसेस है जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच में जाएगा, 8 जजेस की, 9 जजेस की बेंच में जाएगा, और नंबर ऑफ जजेस की बेंच में जाते हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस हुए इंडिया में जो कि फुल सुप्रीम कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा है जिन इश्यूज को देख प्रोसेस करने के लिए कि क्या करेक्ट है, बहुत सेंसिटिव मैटर्स में। करेक्ट। तो इसका है कि 10 years टर्म इज 10 years एक्सटेंडेबल बाय अनदर 5 years। तो इसमें कोई जैसे वो था आपका रेस्टोरेशन ऑफ पेटेंट जो था, तो उस तरह से अगर आपने रेस्टोर किया तो इट इज नॉट योर राइट, इट इज योर रिक्वेस्ट। ऑन द मेरिट्स ऑफ योर रिक्वेस्ट इट विल बी restored. But here anyone can extend the design for 5 more years. You got registered design, you pay annual renewal fee here also. एनुअल रिन्यूअल फी देंगे आप 10 साल तक। उसके बाद में यू मेक एन एप्लीकेशन ऑन अ पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कि आई वांट टू एक्सटेंड द डिज़ाइन फॉर 5 more years। तो आपका मैक्सिमम 15 years के लिए रजिस्टर हो जाएगा डिज़ाइन। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज सर एक क्वेश्चन था ये डिज़ाइंस के रिस्पेक्ट में ही। सर जैसे व्हाट्सएप का एक यूज़र इंटरफेस है, तो मैं सिमिलर इंटरफेस में और कोई सा ऐप अगर डेवलप करता हूँ तो क्या उस पर भी लीगल एक्शंस लिया जा सकता है? तो जो ऐप है इट इज नॉट अ डिज़ाइन। हाँ, ऐप आपको फिजिकली देखो, जैसे आपको गिलास दिखता है फिजिकली आंखों को, आपको कार का आउटर जो शेप और जो स्टाइल होता है कार का वो दिखता है आंखों को, बल्ब होता है, आपका पेन होता है ना, आपका लैपटॉप का ऊपर से होता है सारा दिखता है ना, आपका एयर कंडीशनर दिखता है आपका। तो इस तरह जो चीज़ आपको दिखती है, वाटर बॉटल दिखता है, लिकर बॉटल दिखता है, ये जो दिखते हैं ना आपको आंखों से, तो आपको ऐप फिजिकली तो नहीं दिख रहा ना आंखों से, तो उसमें डिज़ाइन की बात ही नहीं है। वो डिज़ाइन में ना तो रजिस्टर होगा ना उसका कोई कनेक्शन है डिज़ाइन से। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ओके, तो जो प्रोसीजर और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है, डिज़ाइन एप्लीकेशन, पेटेंट में तो आपने जो लिख के दिया ना क्लेम और एप्लीकेशन फॉर्म में, ये मेरे क्लेम है, आई क्लेम माई इन्वेंशन ऑन द फॉलोइंग। बट डिज़ाइन में होता है कि इट शुड बी फिजिकली देयर, बिकॉज डिज़ाइन तो आईज को अपील करता है, तो लिख के तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें फोटो वोटो भी आपको देने होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंगल्स। एक ऊपर से लिया, इस साइड से लिया, उस साइड से लिया, इस साइड से लिया, 45 डिग्री एंगल से लिया, 135 डिग्री एंगल से लिया। तो with all that thing you submit your design application at the appropriate patent office. When I say patent office, the office is the office of the Controller General of Patents, designs and trademarks. और शॉर्ट में उसको पेटेंट ऑफिस बोला जाता है ना, क्योंकि उसका पेटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं तो पेटेंट ऑफिस के नाम से ही चलता है। उसमें एक सेक्शन और डिवीज़न होता है जो कि ट्रेडमार्क का होता है, एक सेक्शन डिवीज़न होता है जो कि इसका होता है डिज़ाइन का, और पेटेंट के बहुत सारे मतलब डिवीज़न तो एक ही है, बट उसमें है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द पेटेंट डिवीज़न ऑफ द पेटेंट ऑफिस, वो सबसे लार्ज होते हैं। मे बी 60-70% ऑफ द पीपल हु आर डीलिंग इन द पेटेंट एग्जामिनेशन, पेटेंट एग्जामिनर्स or assistant controller of patents, deputy controller of patents, and like that. Sir. Yes. What it mean by appropriate patent office? Is there any jurisdiction? Yeah, that is just उसके नीचे वाला देखो आप, ये जो है ना
जो पेटेंट ऑफिस है हर एक का जुरिस्डिक्शन होता है, Okay. हर पेटेंट ऑफिस का जुरिस्डिक्शन है। पेटेंट ऑफिसेज जो हैं इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिसेज हैं, दिल्ली जो द्वारका में है, मुंबई, देन कोलकाता एंड चेन्नई। तो दिया था 4 पेटेंट ऑफिसेज, तो इनका अपना जुरिस्डिक्शन है। आप जिस जुरिस्डिक्शन में आते हैं आप अप्लाई करते हैं उसी पेटेंट ऑफिस अपनी एप्लीकेशन, ओके। Okay. और नाउ यू कैन फाइल द ई एप्लीकेशन आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज अलाउड। देन जो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन है उसका एक सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन होता है। सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन में अगर जो उसको डिज़ाइन का जो एग्जामिन कर रहा है, दैट एग्जामिनर ही फाइंड्स कि देयर सम issues are there, so that he will communicate to you, the objections will be communicated to you, and if you meet the objectives and those objections, if you meet the objections and those objections are your replies to the objections are accepted, then your design will be ready for registration and it will be published. As I told you, every Friday it is published. So, but if you are not able to meet the objections, then it will be refused. Okay, and once it is refused, then you can appeal to the High Court, and if High Court accepts it, it will be notified in the Official Gazette. Gazette इसको लिखते हैं कि पहले गजट ही होता था, but now it is the journal. Then तो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। चलो चलो 2 स्लाइड में हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है if it is rejected by in the appeal by the High Court, you can go to the Supreme Court, and if Supreme Court accepts it, says yes, then you get the registration certificate, and what the Honorable Supreme Court says finally acceptable to all parties. The filing of design application, the receiving and examination, Kolkata is the head office, and the branch offices are in Delhi, Mumbai, and Chennai. These are the receiving centers. So actual examination is done only in Kolkata head office, but applications are accepted in Delhi, Mumbai, and Chennai offices also. Now, I'm giving a brief, then I'll tell you more about the details of the thing. It is just the basic introduction to design, industrial design. Now the trademarks. Intellectual property rights, trademarks. You must have seen TM written over some trademark. Okay. And you must have seen R also written at the top or bottom of something like Coca-Cola. So R can be at the top here or can be at the bottom. What is the difference between TM and R? Have you ever thought what could be the difference? Anyone? Anyone? You have seen both or not? Yes, sir. We have कभी seen both. दोनों देखें ना, तो कभी दिमाग में सोचा कि ऐसा क्या मतलब है, क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? Some maybe R refers to registered and TM R can only be used by the registered person or the company, whereas TM can be used by anyone. Half true. See, when you apply for a trademark, your application for trademark is submitted to the trademark registry. It is known as trademark registry because you are asking for registration of the trademark. So in the trademark registry, the application is submitted. Immediately after that, you start writing TM. That means this particular trademark is under consideration of the trademark registry. The purpose is twofold. One important purpose is that nobody else should think of keeping a trademark similar to yours.
Okay, because anybody wants to have a trademark similar to yours, and your application first, you will be given the trademark, the other person will not be given the trademark. One thing. Second purpose is that if any person who is having a trademark similar to yours earlier than you started your production and keeping a trademark, somebody else has this thing, he will just ask you, "Hey, what are you doing? You have given an application to the trademark registry and you are writing TM, but my trademark is very similar to this thing. It is already registered. Your application will be rejected." So to you also it is a benefit that you can verify such facts from the trademark registry, or it is a trademark attorneys are there. They will do the search and they will advise you कि ये आपने जो ट्रेडमार्क अपने मन से जो बना दिया है वो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं होगा आपका. ये सब पहली ऑब्जेक्शन लग जाएगा बिकॉज इट्स सो सिमिलर टू द अदर पर्सन ट्रेडमार्क विच इज ऑलरेडी registered. And now that trademark may be registered in Chennai, it may be registered in Coimbatore, it may be registered, the manufacturer may be in Guwahati, and that person is selling the product locally only, and you have never been to Guwahati or Coimbatore, and you do not know that such trademark exists in some part of the country. India is a very big country. तो आप अपना सर्च ट्रेडमार्क अटॉर्नी से सर्च करेंगे, वो सर्च करके बता देगा कि ये इंडिया के उस कॉर्नर में इस तरह से ये 5 साल पहले रजिस्टर हो चुका है. तो आपने जो दिया है ट्रेडमार्क, it will not be registered. It will be rejected by the trademark registry after examining your application. So to you the advantage is when you write TM, somebody points it out to you, you can quickly change your trademark because you're not invested in advertising your product much in the initial phase. जब आपका प्रोडक्शन चालू हो जाता है in within 5-10 years, you are producing in large quantities and selling it. So then your trademark becomes known. And trademark and brand, there is some difference in trademark and brand. I'll just tell you. Sir, one question. This trademark is actually a logo, or what is this? That is what is a trademark? Okay. A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods as those produced or provided by a specific person or an enterprise. Okay. Now, Coca-Cola, it is written in a particular manner, and the spelling is also something. So, if somebody says कि I am I want to register a trademark for a cola drink. Cola, anybody can, Pepsi Cola, anybody can keep the word cola. But Coca-Cola is a well-known trademark. So if you say I am saying Coca-Cola and T you write in such a manner that T का जो ऊपर का horizontal line है that is so small, है ना, तो Coca-Cola जैसा लगता है ना, या Coca-Cola, Coca-Cola, है ना, L और T का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. यह है कि आपने O और U या इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं कि आसानी है कि समझ में नहीं आएगा. आप टेक्निकली कहते हैं मेरा तो ये स्पेलिंग है. तो अभी मैं आई जस्ट टेल यू कि जो कॉन्सेप्ट होता है कि इट शुड नॉट बी डिसेप्टिव टू ए कॉमन मैन. ओके, इट शुड नॉट बी डिसेप्टिव टू ए कॉमन मैन. नाउ कमिंग टू द सर्विस मार्क. Service mark is registered for services. Okay, for example, banking, education, finance, insurance, real estate, like DLF, Rahejas, then entertainment, and RK movies. Some movies are there. Repairs, transport, DTC. DTC का क्या ट्रेडमार्क है, सर्विस मार्क क्या है DTC का? सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो सर्विस मार्क क्या है DTC का बताओ, if anybody can describe it. सर सिंबल है DTC का. सिंबल भी है और एक और मार्क भी है. हाँ सर, वो एरो मार्क है, हाँ, राइट एंड लेफ्ट एरो. हाँ करेक्ट. उस जमाने में जब इतनी सारी बसें और ये ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट और ओला उबर और ये सब नहीं होते थे, ऑटो टैक्सीज एंड
पर्सनलाइज व्हीकल भी नहीं थे, मारुति का जन्म नहीं हुआ था इंडिया में, खाली फिएट एम्बेसडर आती थी, एंड दे वर सो एक्सपेंसिव कि आप अगर 25-30 साल की सर्विस करेंगे तो आपको थोड़ी सी सेविंग करके सेकेंड हैंड कार खरीद पाएंगे आप। Incomes were only 400-500 rupees per month. So in those days, this जो DTC bus होती थी, they used to be so crowded, 120 people in a bus, 130 people in a bus, and इस तरह से होते थे कि you could not move your arm. आपको ये नहीं कि आप खड़े हैं in a decent manner, no, it was not possible. और आपके हाथ थोड़ा सा ऊपर है तो उसको नीचे नहीं कर सकते आप, क्योंकि जगह ही नहीं है उसको नीचे करने की। और आपके आधे घंटे का ट्रैवल है तो आधे घंटे तो हाथ को ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। तो एट दैट टाइम इट बिकेम वेरी पॉपुलर कि जो इसका सिंबल है DTC का, वो ये है कि या तो ये बस जो है अपने स्टॉप से पहले रुकेगी, एरो से पहले, या उसके बाद में रुकेगी। वैसे ही ना दोनों तरफ के एरो, अपने स्टॉप पे नहीं रुकेगी वो बस। एंड द रीजन वाज कि अगर स्टॉप पे रुकेगी तो वहाँ पे 20 पीपल आर देयर टू गेट इनटू द बस, तो वो बस में मतलब लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उसमें गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो ऑलरेडी उसमें 125 लोग बैठे हुए हैं, बैठे क्या खड़े हैं टेढ़े मेढ़े से, तो वो उसको या तो 100 मीटर पहले रुकता था, तो उसमें जिसको उतरना है उतर जाएगा। और जो इट वाज ए गुड रेसिंग एट दैट टाइम। आपको मालूम है वो दूर से बस आ रही है, अरे वहाँ रुकी तो दौड़ के लोग 100 मीटर दौड़ते पीछे को। अच्छा, और पीछे नहीं रोकी उसने, तो वो है कि 50-60 मीटर आगे रोकेगा, तो आपके स्टॉप पे नहीं रोकेंगे, चढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यंग लोग जो होते थे वो सीधे दौड़ना चालू कर देते थे बस को देखते ही, ये तो बस आ रही है, ये अब से 50 मीटर आगे रुकेगी। जो रोजाना जाने वाले उनको मालूम होता है पैटर्न, ये 50 मीटर आगे रुकेगी, तो रुकती थी। तो जो उसमें से उतर जाते थे, मान लीजिए 5 लोग उतरे, 6 लोग उतरे, और जो दौड़ के आए थे वो 3 लोग थे, वो 3 लोग लटक जाते थे दरवाजे। तो वो बड़ा पॉपुलर था कि उसका एरो आगे और पीछे वाला जो DTC का है। तो जो भी कुछ है दैट वाज द तो सर्विस मार्क होते हैं, बैंक का होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ऑल ऑफ यू नो, एक सर्कुलर होता है रिंग टाइप का बीच में है, तो ताली वाला जो होता है ना, उस तरह का शो करते हैं वो। IIT का एक अपना वो है ना, सर्विस मार्क है IIT का। But how many of the institutions have got it registered? Because before 1999, remember 1999, Trademark Act 1999, before that there was no registration of service marks in India. जो महाराजा है एयर इंडिया का, it was so well known, popular, but that was also not registered. Because in India before 1999 there was no concept of registration of service marks. And after 1999 कितने institutions का जो पहले का जो उनका मार्क चला आ रहा है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए बॉदर किया होगा। Then there are different types of certification marks. Now, certified by the proprietor as having characteristics like geographical origin, ingredients, quality, like service mark, egg mark, wool mark. वुल की क्वालिटी है तो जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कहता है कि योर वुल इज सर्टिफाइड एज विद आवर सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एज वुल मार्क। तो योर वुल यू कैन सेल एट ए हाई प्राइस एंड इट हैज टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि जो कुछ ऐसी वुल होती थी जिनका क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करती थी, आपने अपने लिए खरीदी कोई पुलोवर और आपने एक बार वॉश किया उसको और इतना श्रिंक कर जाता था कि वो आपके करीब 10-12 साल के बच्चे को फिट बैठेगा, इतना श्रिंक कर जाता। तो लोगों ने कहा कि भाई जब भी आप वुल लेंगे तो वुल मार्क की क्वालिटी का लेना, जो भी वुल लें वुल मार्क होना चाहिए, एग मार्क, क्वालिटी स्टैंडर्ड। सर एक क्वेश्चन, या प्लीज सर एक तो ट्रेडमार्क का क्वेश्चन है सर, जब हाँ। ट्रेडमार्क पे एम और ट्रेडमार्क पे TM और रजिस्टर्ड होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद R लिखा होता है, तो सपोज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ वेंचर ऑफ माय ओन एंड कोई लोगो है जो मेरे दिमाग में,
तो जस्ट टू रिजर्व इट कि कोई और उसके को इन्फ्लुएंस ना करे, मैं एक अपने आप चूज कर लेती हूँ लोगो और उस पे टीएम यूज कर लेती हूँ, तो विल इट नॉट डिटर अदर्स फ्रॉम टेकिंग दैट लोगो फॉर देयर वेंचर और जिस भी पर्पस के लिए? नो नो, तो टीएम लिखा होगा तो वो समझ जाएंगे कि इस पे प्रोसेस हो रहा है, तो नहीं। तो योर प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, देन ओनली यू कैन राइट टीएम ना, नहीं तो कहाँ लिखोगे टीएम को? आपका प्रोडक्ट मार्केट में हो तभी तो टीएम लिखोगे ना, नहीं तो अपने घर में लिख के बैठ जाओ किसी चीज के ऊपर टीएम, कुछ आप बना ही नहीं रहे हो, व्हेन यू आर नॉट मेकिंग ए प्रोडक्ट, तो टीएम कहाँ से लिख पाएंगे बताओ? सर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और जो कम्युनिकेशन है और प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, सब हो रहे हैं, लेकिन हमने उस लोगों को रजिस्टर नहीं कराया है और अभी मतलब दैट इज मे बी प्रायोरिटी लिस्ट में उतना ऊपर नहीं है, तो जस्ट कि कोई और ना ले रहे इसलिए हम उस पर टीएम लगा के यूज कर सकते हैं? इज दैट ओके थिंग टू डू? I tell you, the system is that you should be using a trademark for actual commerce. Okay. Suppose I am a professor and मेरे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, मैं तो पढ़ाता हूँ IPR, मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आ गए, ये ट्रेडमार्क में अपना रजिस्टर कर देता हूँ टीएम लगा के, और इसको फिर मैं एक अपनी वेबसाइट खोलता हूँ कि ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है फॉर सेल, और मैं किसी से 2 लाख 5 लाख रुपए ले लेता हूँ, और people will buy it also, but I will not be able to register any of those trademarks because I can't prove to the trademark registry that I am in the business. Okay, it is the your, you know, you say it is a proprietorship company, private limited company, it is a registered company and you are producing this, and for this purpose you want this particular trademark, then you apply and then you write TM अपने आइडिया के बेसिस पे, तो मैं भी बहुत सारे बना सकता हूँ ट्रेडमार्क ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? राइट सर। अगर कोई स्पेलिंग चेंज के तब भी नहीं होगा? वो हो जाएगा ना, सपोज ये मैकडोनाल्ड है, दिख रहा है मैकडोनाल्ड इसमें स्लाइड में? यस सर। अच्छा, आप इसको MAC कर दें, मैक को, करेक्ट, और मैकडोनाल्ड, तो लोगों को लगेगा कि मालूम पड़ेगा क्या आसानी से लोगों को, मैकडोनाल्ड का MAC डोनाल्ड्स हो गया, MC की MAC हो गया, पता है ना? मालूम पड़ेगा किसी को? नहीं मालूम पड़ेगा ना, तो इट इज कंफ्यूजिंग. You are trying to, you know, sell your product with the goodwill of some other product which is very well known. तो यही जो ट्रेडमार्क का जो कंसेप्ट है वो यही है कि you cannot, you know, you cannot capitalize somebody else's goodwill in the market. और यही कारण होता था कि पहले ज़माने में जो 1995 से पहले, मैं पहला ज़माना बोलता हूँ 95 से पहले का, जब WTO आया है उससे पहले का, जबकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी ज़्यादा इसकी IPRs की, पर ट्रेडमार्क में दुकानदार अपने रहते ही थे, तो वो है कि एक दुकान बहुत फेमस हो गई, तो उसने कहा कि 56 भोग, तो दूसरे ने कहा कि नया 56 भोग, 56 भोग था कि बहुत तरह की वैरायटी स्वीट्स होते, बहुत अच्छे होते थे, तो वो पहले वाला कोड में क्या कि साहब ये है ना, कहता है कि नया 56 भोग है, तो पीपल थिंक कि मैंने ही एक नई दुकान खोल ली है, एंड पीपल गेट डिसीव्ड, डिसेप्शन हो गया ना, डिसेप्टिव हो गया उसका नया 56 भोग. ऐसे होता है कि जो आपका हल्दीराम है, हल्दीराम का आपने हल्दी RM की जगह REM कर दिया, और उसी स्टाइल में उसको लिख दिया हल्दीराम, तो और उसी तरह नमकीन उसी तरह से बना के बेचने चालू कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये हल्दीराम का शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी प्रिंटिंग करते समय कवर में, ये फीलिंग होगा ना लोगों को. सर कई जगह, सॉरी, हाँ बताओ, पूछो. कई जगह इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल्स, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है सर, सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट के होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू, एंड उनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होती है. बहुत अच्छी क्वालिटी होता है. यस सर, मैंने कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने नाम लगाया है, मतलब अपना नाम जो भी AB सैनिक स्कूल, तो उन्होंने AB जो उन्होंने अपना पर्सनल नाम लिखा है वो बोर्ड्स पे उन्होंने बहुत छोटा सा लिखा है, और सैनिक स्कूल बहुत बड़ा सा लिखा है, तो टेक्निकली वो सही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के नाम पे पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आके एडमिशन्स लो, तो ये गलत है या सही है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स?
देखो 99 से पहले तो हमारे सर्विस मार्क का रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट था ही नहीं इंडिया में, है ना। तो उसके बाद में आया है। तो अगर सैनिक स्कूल के लोग जाके वहाँ पे कहते हैं तो केस फाइल करते हैं कि दिस इज डिसेप्टिव टू द पब्लिक, पीपल थिंक कि सैनिक स्कूल की फ्रेंचाइजीज हैं ये सारे, एंड दिस पार्टी द स्कूल ओनर शुड बी मेड टू विड्रॉ दिस नेम, देन द मैटर विल गो टू द कोर्ट में करेंगे ना फाइल। सैनिक स्कूल जो आर्मी के हैं, सब सरकारी हैं आर्मी के, तो वो उनको तो मालूम है कि जो एक्चुअल आदमी है, सारी दुनिया जानती है, इंडिया में सारे लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं। कुल मिला के 15-20 हैं सैनिक स्कूल। अब जो गवर्नमेंट ने अभी पिछले 6 महीने पहले गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया दैट वी शुड हैव a few hundred सैनिक स्कूल्स। पिछले 50 इयर्स में वी हैड ओनली सम 15-20 सैनिक स्कूल। हमने यूनिवर्सिटी बढ़ा दिए, IIT बढ़ा दिए, IIM बढ़ा दिए, सब बढ़ा दिया हमने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़ा दी, बट स्कूल में सर्वोदय स्कूल भी चालू कर दिया गवर्नमेंट ने। बट सैनिक स्कूल विच आर नोन फॉर ए पर्टिकुलर क्वालिटी एंड डिसिप्लिन, तो वो स्कूल्स उतने ही हैं पिछले 50 इयर्स में। तो धीरे धीरे आइडियाज आते हैं तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो ये सैनिक स्कूल्स हैं, तो मिनिस्ट्री कैन फाइल केस द सैनिक स्कूल का, जो जैसे ना केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेड ऑफिस है IIT के पीछे की तरफ है। हमारा जो विश्वकर्मा भवन है IIT का, जहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उधर बाहर निकलते हैं और लेफ्ट रोड में जाते हैं, लेफ्ट हैंड को थोड़ी दूर पर ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेड ऑफिस है। इसी तरह से ये सैनिक स्कूल जितने भी हैं, इनके एडमिशन्स का जो भी, मैं मतलब आई एम नॉट रियली मच अवेयर ऑफ द एडमिशन सिस्टम, क्योंकि इनका एडमिशन नर्सरी प्रेप में तो होता नहीं है, so 6th onwards होता है। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, 99% लोगों को जो भी पॉसिबिलिटी होती है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की, वो ले लेते हैं नर्सरी प्रेप में बच्चों का, और उसके बाद में 14 ईयर्स तक बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो 6th में दिल्ली से उठा के कोई सैनिक स्कूल में कम ले जाता है। पर जो छोटे शहर हैं जहाँ पर कि लोकल स्कूल्स आर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, तो वहाँ पे देखते हैं कि सैनिक स्कूल अच्छा है लोकल स्कूल से, तो हम 6th में ट्राई करते हैं बच्चे का, अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो। एंड उसमें भी होता है कि थोड़ा कंपैरेटिवली द पीपल हु हैव बीन इन द सम विंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, उनमें उनको मालूम होता है कि सैनिक स्कूल अच्छे हैं, डिसिप्लिन होता है, एंड हमारे बच्चे को वहाँ से पढ़ेगा तो उसको डिफेंस सर्विसेज में कमीशन रैंक की उसमें सिलेक्शन हो सकता है उसका, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसका बैकग्राउंड बन जाता है। तो वो लोग छोटे शहरों से जहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है वहाँ से वो शिफ्ट कर देते हैं। पर दिल्ली में अगर कोई बच्चा DPS में पढ़ रहा है, मॉडर्न में पढ़ रहा है, मदर्स में पढ़ रहा है ना, तो वो 5th के बाद में 6th में शिफ्ट नहीं करते नॉर्मली। तो आई हैव नॉट फाउंड एनीवन thinking of shifting a child from DPS or modern school or mother international school to a सैनिक स्कूल। आपके एक दो बच्चे होते हैं वो अपने साथ रहेंगे, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ स्कूल में भेज देंगे सैनिक स्कूल में, बोर्डिंग में, है ना। तो if they now it is the two attorneys, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क के ऊपर कहेंगे कि इसमें तो साफ साफ लिखा है कर्नल M.A. शर्मा सैनिक स्कूल, तो सबको मालूम है कर्नल M.A. शर्मा का सैनिक स्कूल है ये, तो इट इज नॉट डिसेप्टिव, सबको मालूम है कि सैनिक स्कूल में प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं होता है। तो जो सैनिक स्कूल संगठन या ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का जो होगा लॉयर, वो कहेगा कि इतना एजुकेशन एक्सपेंड हो रही है इंडिया में कि इतना फ्रेंचाइजी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो DPS की इतने फ्रेंचाइजी हैं आज की डेट में, तो हो सकता है कि किसी ने कहा कि भाई ये जो कोई भी आदमी सैनिक स्कूल नाम रख सकता है, तो इसलिए लोगों को डिसेप्टिव है ये। तो दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे और बेसिस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में जो भी केस होता है डिसाइड, वो दैट इज बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द टू पार्टीज। ठीक है। अब ये मैकडोनल्ड का एम जो है, जब जिस तरीके से एम लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है नीचे को, इसमें एम है, दिख रहा है R? यस सर, रजिस्टर्ड। हाँ, तो ये है कि रजिस्टर्ड है ये इसका ट्रेडमार्क।
और इसका प्रोसेस होता है कि व्हेन यू अप्लाई, आफ्टर योर एप्लीकेशन इज इन द क्यू, इट इज एग्जामिन्ड कि जो पहले के ट्रेडमार्क्स हैं उनमें कोई सिमिलरिटी तो नहीं है, और आफ्टर दैट इट इज रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। उससे पहले इसको पब्लिश किया जाता है। मान लीजिए कोई आसाम में है, वो कहता है कि मेरा तो पिछले 50 ईयर से ही चल रहा है, यही ट्रेडमार्क है मेरा, तो मैंने रजिस्टर नहीं किया, बट आई एम, तो वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, प्रूफ देगा कि वो 50 ईयर्स पहले उसकी कंपनी रजिस्टर्ड थी और ही वॉज यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, तो इट इज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ए ब्रांड, एंड वहाँ के सारे लोग उसको उस नाम से जानते हैं, तो अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है कि नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग माय बिजनेस थ्रू ऑल ओवर द कंट्री। तो आप ये रजिस्टर कर देंगे तो मैं कैसे बिजनेस एक्सपेंड करूंगा, इन्फ्रिंजमेंट का केस मेरे ऊपर और डाल देंगे आप। तो आप इसको ये ट्रेडमार्क रजिस्टर, वो ऑब्जेक्शन होता है ना, यू इनवाइट द ऑब्जेक्शंस बाय द पीपल, राइट सर। तो कोई भी उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो फिर फॉर्म होता है। तो these are the two basic conditions. It should be distinctive and it should not be deceptive. Sir, I have Okay. a question. Yeah. Sir, is this anything like logos? We have logos also. So, what about logos? Sir? Logos has to be. अरे as they are- लोगो ही, वो ट्रेडमार्क जो होता है, ब्रांड जो होता है, वो लोगो ही तो होता है ना। देखो ऐसा है कि इट कैन बी, तो Okay. मैं एक शायद इसके आगे है, तो एक बताता हूँ। देखो, वाई ट्रेडमार्क फॉर बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज इन कॉमर्स, ये जो पूछा था ना पहले क्वेश्चन, ठीक है, बोनाफाइड में क्या प्रॉब्लम है। बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज इन कॉमर्स, तो मैं कहता हूँ मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को ये ट्रेडमार्क चाहिए, तो मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज आई कांट प्रूव माई बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज इन कॉमर्स, क्योंकि यहाँ तक प्रोफेसर हो। मैं कहता हूँ मैं IIT से रिटायर हो गया, मेरे को कुछ बिजनेस करना है, तो इसके लिए मुझे ट्रेडमार्क चाहिए, मैं प्रोडक्शन करना है मुझे, तो मैंने ये कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो फिर आई कैन अप्लाई फॉर ए ट्रेडमार्क, एंड इट इज द, ये थोड़ा सा ध्यान दे लो इसको, वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स, sound, smell that distinguish either of the thing, smell that distinguish products of one producer from other producer. Okay. Okay. So, sir, the McDonald's, that M is that R is written next to M, but below it there is I am loving it, like something is written. So that is also part of the trademark. Part of their trademark. Okay. See, you can have any combination of letter, symbol, words, and like that, and put all, make any combination of that. Only thing, it should be distinctive and it should not be deceptive. Okay. Now, Sir, Brooke Bond, yeah. Sir, what about the changing of trademark, like when a company changes? See, you can change the trademark also, but it is not you are changing the trademark. What most companies do, they add new trademarks. Okay. For example, Nirma started making Nirma washing powder. Okay. And before 1999, you had to apply for each category a trademark. If you are making the washing powder, you apply for the washing powder. If you are applying for bathing soap, you apply for the bathing soap category. You are applying for suitcase, Nirma suitcase, so you apply for separately. Company owner is the same, but if he is making 10 products of 10 different types, he should apply 10 different applications in those respective categories of products. But now in the single application, you say that you have the intention to go in business, commerce, in the following 5 categories. And therefore, in those, all the 5 categories, you are seeking trademark. So it will be explicitly mentioned in those 5 categories. Okay. Okay, sir. So now it should be distinctive. So Lipton, very distinctive. Earlier, Lipton and Brook Bond, these were the two very well known brands of tea.
सबसे पुरानी इंडिया की जो ब्रांड हैं दो, ब्रूक बॉन्ड एंड लिप्टन, दोनों अलग अलग कंपनीज की थी और हर व्यक्ति को मालूम है कि ब्रूक बॉन्ड चाय है। तो 1990 के बाद में, 99 के बाद में और 5-10 ईयर्स के बाद में इंटरनली कंपनी ने सोचा कि अरे हमारा जो ट्रेडमार्क है लिप्टन, इट इज नॉट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। Of course, because it is so well known that nobody would apply for a trademark on Lipton, and if suppose somebody keeps a trademark or a brand name similar to Lipton, है ना, तो somebody says Liptom, LIPTOM, और M का जो थोड़ा मिक्स कर दिया उसका जो लास्ट वाला था, तो आपको कंफ्यूजन होगी M है कि N, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो वो कोई इस तरह करता है तो they could go to the court of law, and वो डिफरेंट सेक्शंस हैं, है ना, इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। तो उस सेक्शन में वो उसको वो करेगा, जो उसके अगेंस्ट में केस करेगा कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में केस चलते रहेंगे 1-2 साल तक। अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आपका जो लीगल सेक्शन है ऑफिस का, कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट, एक उनको लीगल नोटिस और उनके साथ में अटैच्ड अटॉर्नी होते हैं, वो एक लीगल नोटिस दे देगा उस कंपनी को कि यू आर having your brand name Lipton, which is deceptive to the people, and therefore either you withdraw it or we'll file a case against you in the court of law. तो 99% वो विड्रॉ कर लेगा उसको, क्योंकि उसको मालूम है कोर्ट में जाएंगे तो उसको बहुत लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे उसके। तो जब तक उससे चलता है कहानी चलेगा, और उसके बाद में जब उसको एक बार लीगल नोटिस आ गया तो वो अपना चुपचाप से बंद कर लेगा उसको। तो इन अराउंड आई थिंक 2011 या 12 में लिप्टन जो इनका ब्रांड नेम था लोगो, इसको लिप्टन को इन्होंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट किया कि वी शुड हैव ए ट्रेडमार्क कंपनी, और जितनी पुराने ज़माने की कंपनीज हैं उन्होंने कभी ट्रेडमार्क रजिस्टर ही नहीं किया। इट वॉज सो वेल नोन। तो वो है कि पिछले 15-20 साल में सारे लोग अपना धीरे धीरे करके दे आर अप्लाइंग फॉर ट्रेडमार्क, लीगल है क्या। सर आपने कहा जो पहले के लोग थे वो नहीं करते थे, बट आई हर्ड वन थिंग कि कोई भी रूल जो होता है वो रेट्रो इफेक्ट से नहीं लगता है। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो ये रूल उन्हें, अगर मैं 1995 से पहले से कोई चीज़ ट्रेडमार्क यूज़ कर रही हूँ और वो नियम 1995 में आया, तो उसके बावजूद भी आई हैव टू रजिस्टर दैट? नहीं, आपका जो मार्क है इट इज सो वेल नोन कि लिप्टन के नाम से कोई चाय नहीं बनाएगा, आप कोर्ट में जा सकते हैं। पर अगर आपको कहते हैं कि भाई ये हम इससे 75 या 80 ईयर से यूज़ कर रहे हैं लिप्टन की चाय, जब 1930s से इंडिया में, और इंडिया की जो बेस्ट चाय होती है जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल, दैट इज लिप्टन, दार्जिलिंग टी होती है। और इफ़ यू नो दिस थिंग, ये जो नीचे दिख रहा है ना दार्जिलिंग, है ना, दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी। यस सर, यस सर, वी कैन सी। तो बड़ा ये दार्जिलिंग के नीचे क्या लिख रखा है? यस सर, क्या लिखा है बताओ? लॉन्ग लीफ टी। हाँ, तो पहले अब से आई डू नॉट रिमेम्बर व्हेन एग्जैक्टली दे स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी, बिकॉज ये दार्जिलिंग टी का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर हुआ है ये 2002 में हुआ है। उससे पहले ये था लिप्टन ग्रीन लेवल, इसको बोलते थे लिप्टन ग्रीन लेवल। इसमें बहुत ब्राउन नहीं होती थी, मतलब इसमें चाय बनती थी जो ग्रीन टी होती है ना, इस तरह से बहुत लाइट चाय होती है। इसका एरोमा जो होता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दार्जिलिंग की चाय में सबसे इम्पोर्टेंट इज एरोमा। तो ये जो था इसमें, और सर इन्होंने जो दार्जिलिंग टी लिखा है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के तहत आ जाएगा? तो ये दोनों इनको फायदे हो गए ना। इसमें लिख दिया इन्होंने दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी, तो ये जो लिप्टन के पैकेट के अंदर जो चाय भरी है ये दार्जिलिंग की जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली है, बिकॉज नोबडी एल्स कैन राइट दार्जिलिंग टी।
Okay, so that it becomes unique to them. हाँ sir. नहीं, जो भी लॉन्ग लीफ टी पैक करता है, Right sir. विच इज ग्रोन इन दार्जिलिंग ओनली। दार्जिलिंग में वैसी चाय भी बनती है जो बुरादे वाली होती है ना, हमारी जो ग्रेन्यूल वाली होती है, वो चाय की गार्डन है वो भी ग्रो करते हैं, बट दे कांट राइट दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गिवन टू द लॉन्ग लीफ टी which is grown in Darjeeling tea gardens. और दार्जिलिंग के टी गार्डन, 2 टी गार्डन है, एक में लॉन्ग लीफ टी होती है, उसी के ऊपर ही ये दार्जिलिंग टी अप्लाई है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो दूसरा है जो ग्रेन्यूल वाली जैसी होती है, वो चाय की छोटी पत्तियां होती हैं और उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये। दार्जिलिंग कांट राइट इट इज ऑल्सो इट इज यू नो you have grown it in Darjeeling tea garden, but you can't use the word Darjeeling because Darjeeling is the registered geographical indication of India. So unless you have that quality of tea, which is a long leaf tea, you cannot write Darjeeling tea. तो ये लिप्टन ने देखा कि कंपनी ने कि भाई वी शुड, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम है कि भाई हमारे यहाँ का इंडिया का पहला फर्स्ट जीआई रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया इज दार्जिलिंग टी। और किसी को नहीं मालूम ना कि लिप्टन की जो चाय है ये दार्जिलिंग टी है। जो लोग लेते रहे इतने सालों से, पिछले 50, 60, 70, 80 साल से, उनको मालूम है कि भाई दे लाइक लिप्टन टी, ग्रीन लेवल टी। आप किसी की जाते हो उसने आपको लिप्टन ग्रीन लेवल टी सर्व की, आप इमीडिएटली कहेंगे ओ तो नाइस है ना। तो वो कहता है अच्छा आपको भी ये लिप्टन ग्रीन लेवल अच्छी लगती है, हमें नहीं मालूम था, चलो। उनकी दोस्ती जैसे होती है ना कि ड्रिंक के ऊपर दोस्ती हो जाती है, तो लिप्टन ग्रीन लेवल के ऊपर दोस्ती हो जाती है लोगों की। पर अब है कि जब सबको मालूम है कि ये दार्जिलिंग की है, तो जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होगा, नई जनरेशन को। तो उन्होंने कहा इसको दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी लिख दो, जिससे कि आधे लोग जो पहले से खरीदे हैं वो तो खरीदेंगे, उनको मालूम है कि कौन सी टी है। और जो बाद की जनरेशन के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट नहीं मालूम है, वो कहेंगे दार्जिलिंग टी है, खरीद लो इसको। एक का पैकेट आता है आधा किलो वाला, शायद 800-900 रुपये का आता है, 1000 रुपये का कुछ। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये येलो लेवल टी है, जो लिप्टन का येलो लेवल, ये ग्रीन लेवल। तो इन्होंने ग्रीन लेवल लिखना बंद कर दिया है, पता नहीं यहाँ पे ऊपर को लिखा है क्या नहीं, छोटा सा कर दिया होगा, बिकॉज ग्रीन लेवल हैज नो मीनिंग व्हेन यू गॉट द वर्ड दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी, है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डबल फायदा हो रहा है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड वर्सेस पासिंग ऑफ। Passing off is used to protect or safeguard the goodwill attached to an unregistered, reputed, known brand, the business names and features of getup and trade dresses also. तो ये जो है कोई दूसरी कंपनी उसी तरह की चीज करती है, उसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। दिस इज अ केस ऑफ पासिंग ऑफ, ठीक है। तो अगर किसी का लिप्टन है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, और किसी ने LIPTEN लिप्टन LIPTEN, तो इट इज, जब तक ये रजिस्टर्ड है तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो गया। और आपका ट्रेडमार्क है ही नहीं तो रजिस्टर्ड इसका इन्फ्रिंजमेंट कैसे माना जाएगा? जब उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा और फिर भी किसी ने LIPTEN कर दिया लिप्टन, और जो कि इनके मार्केट को एडवर्सली अफेक्ट करता है, लोगों को लगता है कि इनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई लेवल में, तो दे विल फाइल ए केस अंडर लॉ ऑफ पासिंग ऑफ कि हमारी रेपुटेशन को एनकैश कर रहा है, लिप्टन को लिप्टन करके वो बेच रहा है, क्योंकि आपको जब ट्रेडमार्क है ही नहीं तो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। तो गेटिंग द पॉइंट, किसी ने पूछा था ना ये। यस। तो जो ट्रेडमार्क से इनमें ये फायदा है कि अगर कोई इसके आसपास टाइप का कुछ टाइप का रखता है नाम, तो इट विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द देयर ट्रेडमार्क, ठीक है। बट सर अगर वो हाँ। दूसरे ने अगर वो ट्रेडमार्क ले लिया, जैसे लिप्टन है, तो उसने अपना लिप्टन का ट्रेडमार्क ले लिया, तो वो तो मिलेगा नहीं ना। अच्छा, जो कंडीशन थी, देखो ना ये जो 2 कंडीशन थी ना इसके, ये डिफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ बताओ? करेक्ट। इट शुड नॉट बी डिसेप्टिव। लिप्टन तो डिसेप्टिव हो जाएगा ना लोगों के लिए, ठीक है। आपने देखो ये एक्वाफिना है, किनले है, ये
तो किनले में KINLAY कर दिया आपने, राइट सर। और ऐसी बॉटल बना दी। तो इसका थोड़ा सा ऊपर का डिजाइन बदल दिया आपने, प्लेन कर दिया इसको। यहाँ तो ये जो है ना डिप्रेशन वाला है, ऊपर का प्लेन कर दिया, तो आपने डिजाइन को इन्फ्रिंज नहीं किया है। तो KINLAY कर दिया आपने। अब देखने वाला है किनले यही तो था, पता नहीं, आई थिंक तो उसके नाम से बेच सकता है। तो ये जो है वो जो है दिस विल बी द केस ऑफ पासिंग आउट, है ना। ओके सर। Now kinds of ट्रेडमार्क होता है मार्क ऑन गुड्स। Another question, sir. हर जगह लोकल मार्केट्स होती हैं और उसमें हर ब्रांड का एक चीप कॉपी मिलता है, तो फिर भी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को मालूम नहीं हो, एवरीवन नोज कि वो रियल इतने का मिल रहा है ओरिजिनल, और ये उसके 1/10 का मिल रहा है, तो दिस इज नॉट द रियल वन, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है सर। तो दैट इज ओके, या क्यों नहीं होता है, या कोई शिकायत नहीं करता? दोनों बातें हैं। देखो, एक अगर छोटा सा मैन्युफैक्चरर है, वो यहाँ पर एक कौन सा कोई इंडस्ट्रियल एरिया ले लो दिल्ली का, है ना, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया ले लो। मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी छोटी सी है, उसका 300 स्क्वायर फीट का या 500-800 स्क्वायर फीट का छोटा सा शेड है, वहाँ पे वो छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका टोटल प्रोडक्शन और जो सेल है और जितना इनका जो कॉमर्शियल लॉस है, वो मान लो कि दैट इज ओनली 5,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर वो केस करेंगे तो इनका 50 लाख रुपये लग जाएगा। इनका जो अटॉर्नी आएगा बॉम्बे से आएगा, वो यहाँ दिल्ली में 5 स्टार होटल में रुकेगा, और फिर यहाँ पे वो उसका केस करेगा, तो वो एक पर डे का वो 10 लाख रुपीज पर डे चार्ज करेगा, तो उनका 50 लाख रुपीज खर्च हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये छोटे मोटे हैं, जैसे पता है ना पैरासाइट्स, मक्खी बना रही है आपको, मक्खी मच्छर होते हैं ना, परेशान कर रहे हैं आपको, राइट तो सर। इनको पैरासाइट की तरह समझते हैं बड़ी कंपनी। राइट सर, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है हाँ, उनसे इकोनॉमिकली लेना। फिजिबल नहीं है इनके लिए कि इनके लिए हर छोटे इनके लिए जाके कोर्ट में जाते रहें। और हाँ, जो ज्यादा बड़े होते हैं वहाँ पे देखो तो कोर्ट, जैसे लकोस्टे है, जो एलिगेटर का वो होता है ना छोटा सा स्लीव्स के ऊपर टी शर्ट्स में, लकोस्टे वालों को मालूम पड़ा कि ये सारे सरोजनी का मार्केट में लकोस्टे के ग्रीन कलर का एलिगेटर लगा के वो सारे बेच रहे हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को आके जरा खरीद के लाओ, मालूम करो, थोड़ा सा इंटेलिजेंस वर्क किया कि कहाँ से आता है तुम्हारा सप्लाई, क्या हमें भी खरीदना है, तो हमें बल्क में खरीदना है, हमें अपने सारे कंपनी के लोगों को 1,000 टी शर्ट देनी है, तो एक आपसे रिटेलर से तो खरीदेंगे नहीं सरोजनी नगर में। तो उसने कहा कि 5 तो तुम हमें दे दो, खरीद रहे हैं हम 500 तुमसे, और बाकी हम 1,000 लेनी तो हम मैन्युफैक्चर से ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी, तुम कहाँ तक सप्लाई करोगे। कहते हैं 5,000 तो मैं नहीं सप्लाई कर सकता, मेरी तो रिटेल की शॉप है, मैं तो 40-50 पीसेज रखता हूँ। तो उससे उन्होंने एड्रेस ले लिया, वहाँ पे जाके किसी को भेजा कि जरा मालूम कर क्या होता है। जब उनको पूरा पक्का मालूम पड़ गया कि ये लाखों में बना रहे हैं, लकोस्टे के जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है, और लाखों में ये टी शर्ट बन रही हैं। वहाँ पे ये है जो क्या नाम है इसका, जो कश्मीरी गेट से उधर जाते हैं ना जौना पार, गांधीनगर एरिया, यू नो गांधीनगर एरिया ऑफ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, यस सर। जो ISBT जो मेन वाला है, ISBT सबसे पुराना, वो ISBT से अक्रॉस जाते हैं तो वहाँ पे राइट हैंड को एरिया है, वो गांधीनगर कहलाता है। वहाँ पे जो एशिया की सबसे ज़्यादा जीन्स वहाँ बनती हैं, लेग वेयर, और सारे बहुत तरह के, बहुत बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है और लाखों में होती है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा ये तो हमारा बल्क में लॉस हो रहा है, तो उन्होंने इसको कंप्लेन किया, और हाई लेवल पे कंप्लेन किया, और वो सारे के सारे शॉप्स को एकदम से उनके ऊपर रेड हुआ और सीज कर दिया सारी चीज़ों को। और एक कंसेप्ट होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। यू नो व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? नो सर। एक होता है जो आप यू कैन फाइल ए पेटेंट का जो इन्फ्रिंजमेंट है ना, यू कैन फाइल ए केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल केस हो गया ये, है ना। तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में आपने फाइल कर दिया और वहाँ पे दोनों की हियरिंग होगी और वो होगा सिविल मैटर्स की तरह से होता है। अच्छा, एक होता है क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं दे आर, तो किसी ने किसी मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को चक्कू मारा, तो ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर CRPC, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंजमेंट है इट इज अंडर द CRPC,
तो पुलिस उसको अपने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके रेड कर सकती है। तो उन्होंने हाई लेवल पे इसको ऑपरेट किया और वहाँ पे रेड किया, तो उसका जो रिजल्ट होता है, जब प्रूव तो होना ही था वो कि ये फेक बना रहे हैं, फेक नाम से बना रहे हैं, इनका ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट है। तो सबसे पहले तो जो उसका है कि वो प्रोडक्शन बंद कर दिया, और उसके बाद जिन मशीनों से बनता है ना, उन मशीनों को टोटली डैमेज कर देते हैं। समझ लो कि उसको बुलडोजर चला देते हैं, मशीन को बाहर लाके उसको बुलडोजर चला देते हैं, उसको पूरा बिल्कुल चूरा बन जाएगा, चिकन मतलब है ना, सारी मशीन को खत्म कर देते हैं वो। ठीक है, बुलडोजर से वो इस तरह से इक्विवेलेंट तरीके से। तो उसको करेगी, उसने तो करोड़ों रुपए कमा लिए थे तब तक। उसकी अगर है कि 1 करोड़ की उसने 2 करोड़ कमा लिया, 1-2 करोड़ की उसकी मशीन खराब भी हो गई, डैमेज हो गई, खत्म हो गई। हाँ, पर ये इट इज ओनली वन साइड ऑफ इट। अब उसको जब इट इज वन पार्ट ऑफ इट, उसके जो वो कैपिटल पनिशमेंट, उसको फिर जेल होगी 10 साल की। 10 साल की जेल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जेल में रहना पड़ेगा ना 10 साल उसको। तो उसका है कि ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो ट्रेडमार्क का जो इंफ्रिंजमेंट है दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, इफ इट इज आइडेंटिकल, पासिंग ऑफ नहीं, आइडेंटिकल है तो ठीक है। सर ये जो मतलब डुप्लीकेट कई बार मतलब दूसरी कंट्री में भी बनता है, तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते ना? नहीं, देखो ऐसा है कि ट्रेडमार्क पेटेंट होता है, जिस कंट्री में आपने अप्लाई किया उसी कंट्री में मिलेगा। ऐसे ट्रेडमार्क जिस कंट्री में अप्लाई किया उसी कंट्री में मिलेगा आपको, है ना। तो आपके यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क सबको मालूम है, इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है ना। अमूल दूध पीता है इंडिया, सबको मालूम है अमूल। तो आप अमूल के नाम से और चीज़ नहीं कर सकते। आप चॉकलेट बनाओगे अमूल के नाम से, चलो चॉकलेट तो अमूल बनाते हैं। सपोज आप एक अमूल के नाम से कोई और चीज़ इस तरह की बनाते हैं, तो दूध और दही, घी, चॉकलेट सब बनाता है अमूल। तो कोई और ऐसी खाने की चीज़ ले लो जो बनाता है, नहीं बनाता। फ्रूट ड्रिंक सर, वो भी तो देते हैं, हर तरह की लस्सी वस्सी सब आती है इनकी, फ्रूट सब चीज़ देते हैं ये लोग। चलो खैर ठीक है, फ्रूट जूस से समझ लो, फ्रूट जूस में नहीं है अभी अमूल। तो इंडिया में अगर कोई फ्रूट जूस में अमूल के नाम से बेचता है, तो उसको अमूल विल गो टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की इनका जो पहले तो टीएम वाला करके ही बेचेगा। तो टीएम करके बेचता है तो इमीडिएटली उनको मालूम पड़ जाएगा मार्केट में टीएम से आ रहा है अमूल, वो क्या बोलते हैं उनको, ये जूसेस आ रहे हैं टेट्रा पैक में, तो वहीं कर देंगे। और वो टीएम भी नहीं कर रहा, वैसे ही बेच रहा है, तो उसको कोर्ट में उसको कर देंगे, केस कर देंगे उसके ऊपर, तो उसका स्टॉप करा देंगे, वन थिंग। तो जो दूसरा है, जो एक दूसरे कंट्री में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में होता है कि इंडिया बहुत सक्सेसफुल है अमूल, तो हमारे यहाँ पे अमूल चालू कर देते हैं। तो किसी मैन्युफैक्चरर ने अमूल के नाम से अप्लाई किया ट्रेडमार्क, तो वो पाकिस्तान का ट्रेडमार्क देखेगा ना, पास के ट्रेडमार्क क्या हैं, उनमें अगर सिमिलरिटी नहीं है तो वहाँ पे अमूल का वो दे देंगे। नाउ सपोज दैट पाकिस्तानी कंपनी एंड इंडियन अमूल कंपनी both go to USA and they want to market their product and they want to manufacture there, वहाँ पे अपना प्लांट खोल लेते हैं। तो वहाँ पर जो पहले उसको अप्लाई करेगा ट्रेडमार्क के लिए उस कंट्री में, उसको मिल जाएगा। फिर दूसरा कंट्री का उस ट्रेडमार्क वाला प्रोडक्ट को वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते वो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मान लो हम अमूल का प्रोडक्ट बांग्लादेश में बन रहा है, फिर इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में अगर कोई रेड करता है, पुलिस रेड करती है, तो वो इंपोर्ट रोक सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकती ऐसा? हाँ, इंपोर्ट रोक सकते हैं वो, है ना। एट द बॉर्डर उसका है कि आप कंफ्यूज कर देंगे उसको गुड्स को कि भाई ये यहाँ पर इन्फ्रिंज करेगा हमारे यहाँ के ट्रेडमार्क लॉ में, ये अमूल बांग्लादेश से आ रहा है, इंडिया में अमूल का दूध, दही, लस्सी, मिल्क शेक, ये सब चीज़ें मिलती हैं, बटर। तो इफ़ एनी पर्सन मेकिंग अमूल के नाम से अपने कंट्री में, उसने बांग्लादेश में रजिस्टर कर रखा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, पर वो इंडिया में उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उस नाम से। इफ दे वांट टू एक्सपोर्ट टू इंडिया दे विल हैव टू चेंज द नेम। और ये होता है। और उसमें ये भी होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई वर्ड होता है जिसका कि मीनिंग बहुत डेरोगेटिव हो जाता है, ठीक है।
तो एक कंट्री में वो बड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे कंट्री की लैंग्वेज में है वो ऐसा लगता है कि गाली है, कोई इस तरह का ना डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है। तो वो कंपनी जब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करती है तो उसको अपना ट्रेडमार्क को बदल के करती है, क्योंकि उस नाम से तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना उस कंट्री में। क्वालिटी अच्छी है, एक्सपोर्ट तो हो जाएगा आपका, पर उस नाम से नहीं होगा। तो यू हैव टू चेंज योर नेम, ब्रांड नेम व्हाइल एक्सपोर्टिंग अदर कंट्री। और जब वो चेंज करेंगे तो दैट एनीथिंग सिमिलर टू दैट नेम should not be a registered trademark in that country under R or TM, वो भी देखना पड़ेगा। Any other question? सर इस तरह के केसेस में जो अभी जैसे आपने बांग्लादेश वाला एग्जांपल लिया, इसमें पीसीटी या जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं जो पेटेंट के ऊपर काम करती हैं या पेटेंट के लिए बनी है, उनका कोई रोल नहीं होता है कि वो चेक करती हैं इस तरह के इंटरनेशनल केसेस जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? नहीं, उनका रोल खाली ये है कि जैसे विल डिस्कस व्हेन, अभी तो बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ट्रेडमार्क का डिटेल डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू कि यू कैन हैव ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर योर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो जो ट्रीटी है उस इंटरनेशनल ट्रीटी को जिन जिन कंट्रीज ने साइन कर रखा है उन सब कंट्रीज में आपका सिंगल एप्लीकेशन से ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो विल डिस्कस दैट इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें कि एक एप्लीकेशन जैसे पीसीटी हमने डिस्कस किया था ना उस दिन। यस पीसीटी से देयर आर टू फेजेस, इंटरनेशनल फेज एंड नेशनल फेज। तो पीसीटी में दो फेजेस होते हैं। इंटरनेशनल फेज का कॉमन सर्च होता है, फिर नेशनल फेज में जाके आपको पेटेंट ग्रांट होता है। पर ट्रेडमार्क में, डिजाइन में, इन सब में आपका एक एप्लीकेशन से जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, सिग्नेटरीज हैं ट्रीटी के, यस सर, तो इन ऑल दोज कंट्रीज आपका रजिस्टर हो जाता है ट्रेडमार्क या डिजाइन। आपको हर एक बार एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती हर कंट्री। ठीक है, तो दैट इज द रोल। और जहाँ तक लॉ के एनफोर्समेंट की बात है, दैट उसमें WIPO इनका रोल कुछ नहीं होता ना। दे कैन मेक द सिस्टम, दे कैन गिव यू द अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, बट दे आर नॉट द पुलिस, दे आर नॉट द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। ठीक है, just let me just one or two slides on trademark. Trademarks are on marks on the goods. Service marks are for the services, which I discussed: education, banking, insurance, and all that. Then certification like egg mark and all that, which are the quality certification marks. Then well-known marks: Coca-Cola, Toblerone, ये triangular chocolates आती हैं, सबको मालूम है। तो ये जो चीज़ें हैं, and then trade names. ठीक है, trade names, there are two types of things. One is those companies who keep the family trade names, like Bajaj. बजाज का पंखा, बजाज का हीटर, बजाज का टोस्टर, बजाज का बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बजाज के आयरन, तो उनका फैमिली नेम चलता है बजाज का। गोदरेज की टेबल, गोदरेज की चेयर, गोदरेज की अलमीरा, है ना, तो गोदरेज का हो जाता है, गोदरेज का सोफा, तो उनका एक फैमिली ब्रांड नेम से चलता है। दूसरे होते हैं कि वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं, डाबर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं बताओ मुझे, 4 प्रोडक्ट के नाम बताओ कोई भी, एनीवन। हनी सर, हनी, डाबर हनी, तो और टूथपेस्ट भी है, टूथपेस्ट है, हजमोला। हजमोला। अब हजमोला में कहीं डाबर तो नहीं आया ना? तो डाबर हजमोला ना? नहीं, वो डाबर क्या, पर वो हजमोला के नाम से गया था। अच्छा हाँ, हजमोला ही है, राइट ना, डाइजेस्टिव टैबलेट्स। तो हजमोला तो हुआ है कि उनका अलग अलग नाम से, तो इसके मार्केटिंग के लोग पढ़ते हैं कि भाई इसमें अलग अलग है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट की रेपुटेशन खराब हो जाती है फॉर वन और द अदर रीजन, वो आपको सारे प्रोडक्ट्स की आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो एक जो है ना फैमिली ट्रेड नेम में ये डिसएडवांटेज होता है, यू कांट अफोर्ड टू लूज योर रेपुटेशन इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और जो अलग अलग है, मान लीजिए कि एक चीज़ में आपकी रेपुटेशन खराब हुई, तो पीपल डोंट नो कि ये दूसरा प्रोडक्ट आप ही का है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। एक जगह आपने लिखा था प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर टेस्ट एंड साउंड, ये वाला सर, तो इसमें सर ये कैसे, मतलब जैसे आप ये टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे कोई डाबर का घी या अमूल का घी है, टेस्ट वाइज तो सेम ही हो सकता है सर, मतलब वैसा है कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द ट्रेडमार्क्स आर ऑन वर्ड्स, जैसे डालडा, रथ आते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल आते हैं, वनस्पति घी आता है ना,
तो इस तरह से कि आपका कोई सिगरेट होती है, जॉनी वॉकर है, तो वर्ड में लिखा है जॉनी वॉकर और उसका एक लोगो भी दे रखा होता है वहाँ पे, तो सिंबल भी हो गया उसका। तो एनी वर्ड और लेटर और सिंबल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर, जैसे आई एम लविंग इट है ना, मैकडोनल्ड का एम उसमें, तो इट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, लेटर, सिंबल और एनीथिंग which can be distinctively put on the paper, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस साउंड एंड स्मेल। साउंड जो है कुछ कंट्रीज में यू कैन से कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसकी साउंड ऐसी है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क चाहिए मुझे, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड इन फ्यू कंट्रीज, एंड स्टिल इन फ्यूअर कंट्रीज देयर इज ए स्मेल ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे अच्छा साउंड का मैं बताता हूँ। आई एम श्योर यू आर अवेयर द रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, सबको मालूम है ना रॉयल एनफील्ड? यस सर। यस। अच्छा, इसके पहले जमाने में दो मॉडल होते थे, एक होता है शेरपा, एक होता था बुलेट। बुलेट रॉयल एनफील्ड मालूम है सबको? यस सर। रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल। तो जो बुलेट मोटरसाइकिल होती थी उसकी जो फटफट फटफट आती थी ना, उसमें जैसे बच्चों में झुंझुना होता है ना, फट फट फटफट ने झुंझुन झुंझुन भी ऐसा झुंझुना भी बजता था, ऐसी आवाज आती थी उसकी। तो अगर जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर चुका है बुलेट को, आप घर के अंदर बैठे हैं, बाहर से कोई, बाहर किसी ने स्टार्ट की, आपको आंख बंद करके आप कह देंगे ये तो बुलेट है, बुलेट मोटरसाइकिल है ना। तो इफ यू कैन हैव ए साउंड व्हिच इज वेरी स्पेशल, व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, you can, some countries, some trademark act allows the registration of trademark based on the sound. अच्छा, कुछ होता है कि आपका प्रोडक्ट है उसका स्मेल एक पर्टिकुलर टाइप का है, इंडिया में नहीं है बट कुछ कंट्रीज में है, जैसे रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा का जो आप शरबत की बोतल को नाक से सूंघेंगे तो उसमें एक, इट इज़ नॉट ए प्योर रोज, एक स्मेल आती है, तो आप कहते हैं इस स्मेल का मेरा, पर क्या होता है कि जो स्मेल और साउंड है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है आसानी से। It's very difficult to have standardized smell और standardized sound, क्योंकि सिंपल जो देखने में विजुअली चीजें हैं उसमें आसान होता है, तो इसलिए साउंड का और स्मेल का बहुत कम कंट्रीज में ट्रेडमार्क मिलता है। और वाई ट्रेडमार्क? इट इज स्टाइलाइज्ड प्रेजेंटेशन पॉसिबल होता है इससे। इट इंडिकेट्स प्रोड्यूसर एंड सिग्नल्स क्वालिटी। आप कहते हैं मैंने पियर्स साबुन से यूज़ किया, डव साबुन यूज़ किया, है ना, अपने जो वॉशिंग जो करते हैं इसका वुलन टाइप का जो है, इजी है, जेंटिल है, इस तरह के जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, जैसे कपड़े खराब नहीं होते, तो उसका है कि वो जो वंस यू नो द नेम, यू नो भाई ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है इस ब्रांड का। तो ट्रेडमार्क जो है आपको इसमें क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उससे मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क का कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है, तो कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फॉर द क्वालिटी। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, आपने हजमोला खाना प्रॉब्लम हो तो इनो खाना, ये सब आते हैं ना, एडवर्टाइजिंग में ऑल हेल्प्स। देन इट इज इजी ऑर्डर प्रोसेसिंग, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रेडमार्क इज इट इज रिन्यूएबल फॉर एवर। ओके, इट इज रिन्यूएबल फॉर एवर, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजिंग में, तो ये थोड़ी है कि 10 साल के बाद में आपको बंद कर देंगे। Initially it is 10 years, then you can keep on renewing it every 10 years. Okay? तो ये जो है इसका पासिंग ऑफ का एक परफेक्टी है, परफेक्टी क्या है ना, ये एल्पिनाइबल, एक है अपने लिए, तो उसी तरह से उसने लिख दिया अपने लिए, एक सा लगता है ना देखने में। yes, एक है परफेक्टी का है, एक है अमन का है ना, लिख रहे हैं ना ऊपर, अमन फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बताओ ये जो परफेक्टी है, परफेक्टी वाले इसके अगेंस्ट में जाएंगे कि नहीं? तो ये जो शॉर्ट टर्म एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो फटाफट देखते हैं यार ये ऐसा फट से बना लो और बेच दो, तो जब बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सम एंटरप्रेन्योर। अच्छा, नाउ ट्रेड सीक्रेट, जस्ट इट इज ओनली वन स्लाइड, तो इसमें मैं इसके बाद मैं क्लोज टुडे। This is closely guarded secret related to production process like Coca-Cola. The advantage is that no defined term of protection, और आप इसको 100 years तक प्रोटेक्ट होके तो रख लोगे, so long as it doesn't get leaked out.
ओके, और जो अगर पेटेंट होगा तो 20 ईयर्स के लिए होगा मैक्सिमम। तो दिस इज द एडवांटेज। So there is no law for registration of trade secret because it's secret. You don't disclose it in any document. Okay. So सर हाँ, कल की डेट अगर किसी चोरी हो गया ये ट्रेड सीक्रेट, तो मतलब कोई दे कैन नॉट फाइल अ केस सम लाइक दैट? हाँ, उसका होता है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराते हैं हर एम्प्लॉय से कि आपका कोई भी ट्रेड सीक्रेट जो है वो यहाँ से लीक आउट नहीं होना चाहिए। और आप कहते हैं कि लीक आउट हुआ और इसके ऊपर हमें सस्पिशन है तो उसके अगेंस्ट में आप केस कर देंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसको मान लीजिए उसने जेन्युइनली वो था तो कोर्ट में फिर प्रूव दैट कि उसने आपका वो किया है, लीक किया है, दैट मीन्स ही हैज डेविएटेड फ्रॉम द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसने आपकी चीज़ को कंपनी सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया है, नॉट ओनली द ट्रेड सीक्रेट लाइक दिस बट एनी अदर सीक्रेट यू कैन प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको जेल हो सकती है। जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं दे ऑल यू नो डू दिस थिंग, सब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को वो करते हैं। सर ये जो इंडिया में जैसे ये मसाले होते हैं इस पे हाँ। भी होता है क्या ट्रेड सीक्रेट? नहीं, मसाले पे नहीं होता, पर देखो ट्रेड सीक्रेट हो सकता है जहाँ पर कि आपको वो पॉसिबिलिटी है, देखो कि यू कैन कीप योर सीक्रेट सीक्रेट, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई नहीं कर सकता। तो ये केमिकल्स में हो सकता है, ठीक है। केमिकल्स में ये हो सकता है कि आपने जो बनाया, जैसे एक यहाँ से आप मेरठ जाते हैं तो जैन शिकंजी, और जैन शिकंजी ने मसालों को इस तरह से डाला कि अब उसने क्या क्या डाले हैं, किस प्रोपोर्शन में डाले हैं, तो उसका जो सिस्टम है वो बहुत फेमस हो गया जैन शिकंजी। और आज की डेट में पूरे काफ़ी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे शहरों में वो उसका पैकेज पाउडर देते हैं, शिकंजी पाउडर। तो पानी में वो शिकंजी पाउडर डालिएगा, आपकी वो शिकंजी बन जाएगी। सर ये नहीं पता ना पर असली कौन सा है? क्योंकि इतने सारे शिकंजी वाले दुकान भी खुल गए, फिर पैकेट्स वो भी आ होता रहे है ना, देखो इंडिया में जिसको सक्सेस मिल जाती है ना, बाकी सब लोग वो उसी तरह से करते हैं कि भाई ये जो है मतलब जिसको सक्सेस मिल गई है तो उसी नाम से लोग है ना चीजें बनाने लगते हैं, ठीक है। यस सर। So this is the problem. Okay. Yes. तो ये है ट्रेड सीक्रेट का। अब लोग कहते हैं ना कोका कोला का सीक्रेट है वो कुछ ही लोगों के पास में, 4 लोगों के पास में, एंड दे कीप इट अंडर लॉकर, दे डोंट डिस्क्लोज इट। और उसका और दैट इज द रीजन कि पिछले 100 ईयर्स से कोका कोला के इक्विवेलेंट कोई ड्रिंक नहीं आ पाया वर्ल्ड में। पेप्सी है ज़्यादा मीठी होती है, और कुछ होता है, कुछ और होता है, पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू कोका कोला कोई नहीं बना पाया है। इज दैट सो और नॉट? राइट सर। तो इंडियन प्रोडक्ट्स का लें ट्रेड सीक्रेट का, तो इफ़ यू आर फैमिलियर, जो आप रोज सिरप होता है ना, शरबत, रोज वाला शरबत, डाबर का भी आता है, बहुत सारी कंपनीज का आता है। आपको 4 डिफरेंट कंपनीज के और शरबत दिए आपको आधा गिलास, और एक रूह अफ़ज़ा दिया आधा गिलास। आप थोड़ा सा 2 घूंट पियेंगे, आप बता देंगे ये रूह अफ़ज़ा है चारों में से। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? यस सर। सर रूह अफ़ज़ा बहुत अलग होता है, डिस्टिंक्ट अलग होता है और इसीलिए महंगा मिलता है। उसका प्रोसेस डिफरेंट। बाकी तो शुगर सिरप में रोज़ का वो डाल के, एसेंस डाल के, पिंक कलर डाल के बना दिया सबने। तो रूह अफ़ज़ा इज़ ए मच मोर टेक्निकल, यू नो, मच मोर आयुर्वेदिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और इसीलिए कि रूह अफ़ज़ा का जो है वो ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट। पर हम इंडिया में फॉरेन कंपनीज की बात ही करते हैं, हम कहते हैं कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट है, हम ये नहीं कहते हैं रूह अफ़ज़ा का ट्रेड सीक्रेट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो बाहर की चीज़ बड़ी अच्छी होती है, इंडिया में सब बेकार है, अनफॉर्चुनेटली। तो बट दैट्स द ट्रुथ। यस। तो आपके पास में एक वाइट स्किन पर्सन आ जाएगा लैब में, तो आप उसको एंथुसियास्टिकली सारी चीज़ बताने लग जाएंगे, है ना, कलर कॉम्प्लेक्स, स्किन कलर कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई ब्लैक स्किन या ब्राउन स्किन आएगा तो यू विल नॉट बॉदर अबाउट इट। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बट एनीवे कांट हेल्प। सर पर अब धीमे धीमे चेंजेस आ रहे हैं, लाइक पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ इट कि हमें फालतू में इन्हें इतना ज़्यादा भाव नहीं देना है जितना अभी तक दिया गया है। ठीक है, पर जो भी भाव दिया गया तो ज़्यादा दे दिया गया, पर अभी भी है कि
आप आईआईटी के डायरेक्टर से एक वाइट आदमी मिलने जाता है और एक दूसरा आदमी मिलने जाता है, वाइट को एंटरटेन कर लेंगे कि नहीं आईआईटी के डायरेक्टर? हाँ सर, कर रही हूँ सर। तो यही है कि अभी वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है सर एक ऐसा है कि मतलब कोका कोला अपना सीक्रेट रख रहा है, तो मतलब ऐसे होता है ना कि कंपनी को मेंशन करना होता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह, हाँ तो वहाँ पे देखो केमिकल, बिल्कुल ठीक है। तो केमिकल्स में कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाते हो, इंग्रेडिएंट आप बता दो, पर उसका जो प्रोसेस है, देखो वही चाय की पत्ती है, वही दूध है और वही चीनी है। आपने कहा इसमें 1 चम्मच चीनी है 1 कप चाय में, और आधा ये 1 चम्मच चाय की पत्ती है, और 1/3 ऑफ द कप ऑफ मिल्क इज देयर। इसको कितने टेस्ट का बना सकते हो बताओ मुझे? बहुत सारे। बहुत से तरह की टेस्ट की चाय बनेगी ना। यस सर। तो यही चीज है कि केमिकल प्रोडक्ट जो होता है उसका प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमने जो 1970 के एक्ट में तो केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड के ऊपर जो प्रोडक्ट पेटेंट बंद किया था, सो दैट इंडियन इंडस्ट्री ग्रोस। आप किसी और प्रोसेस से बना लोगे, पर आपको प्रोडक्ट के ऊपर तो पेटेंट है नहीं, तो आपने ढूंढ लो किस प्रोसेस से बनाना है आपको। आपको सारी चीज़ों को इकट्ठे करके बॉईल करना है, या पहले पत्ती बॉईल करनी है, या पहले दूध और पानी और चाय को करना है बॉईल और बाद पत्ती डालनी है। तो उसको पत्ती को कब डालना है, कैसे डालना, कितने मिनट और सेकंड तक कैसे उसको सीक्वेंस रखना है, दैट विल डिटरमिन द टेस्ट ऑफ द टी। तो केमिकल्स में इट इज रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट पॉसिबल। आपने डिस्क्लोज किया है कि इसमें क्या क्या है, मुझे तो इक्वल अमाउंट ऑफ टी लीव्स, इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, मैं 10 तरह की टेस्ट की चाय बना देता हूँ। ठीक है, तो वो उसमें केमिकल्स में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकता है। आपने जो बनाया है उसका अपना एक वो होता है, क्वालिटी होता है। ठीक है, अच्छा डे आफ्टर टुमारो आई विल डिस्कस विद यू। एक तो मैं पहले बताऊंगा टर्म पेपर के बारे में, और उसके बाद में आई विल डिस्कस अबाउट द कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। ठीक है, और ओके सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। वो जो आपने 4 क्वेश्चन सबमिट करने को कहे, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, मैं पूछने से पहले बता रही हूँ कि जैसे हम सारे लोग 4 या 5 क्वेश्चंस बना के भेजेंगे, तो इससे अच्छा हम 5 बनाएंगे और हम 100 लोग हैं अगर, तो या 90 लोग हैं तो 450 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक 450 क्वेश्चंस का मास्टर बैंक ही ना तैयार कर दें, तो इससे सारे लोग पढ़ लेंगे और दे विल हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स, अगर वो गलत नहीं है तो। वही मैंने कहा है कि आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें उसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप उसके आंसर की भी देंगे और अपना नाम भी देंगे। तो अगर आपने गलत की दे दी उसकी, तो आपकी रेपुटेशन क्लास में खराब होगी ना, कि ये तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गलत की दे दी इन्होंने। नहीं सर, अच्छा, ऐसा और तो ये सबको, ये जो जितने क्वेश्चन बैंक है, इट इज टू बी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, तो सब लोग बस 5 ही क्वेश्चंस तो शेयर करेंगे ना? नहीं नहीं, 3-4 क्वेश्चन सारे लोग एक पूल में आ जाएगा, पूल को शेयर कर देंगे ना सबके साथ में। ओके, यस जो पूल होगा ना, वील शेयर द पूल। जो मान लीजिए किसी ने 3 दिए, किसी ने 4 दिए, कुछ लोग नहीं भी देंगे कि अभी देता हूँ करते करते मंडे ही आ जाएगा उनका, मंडे ट्यूजडे क्लास का एग्जाम भी आ जाएगा, वो सोचते रह जाएंगे। कुछ लोग हर तरह के लोग होते हैं ना। राइट। तो जिन लोगों ने दे दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 4 दिए, पर आई वांट गुड क्वेश्चन, मतलब कि उसमें आएंगे आपके रियल जो देखो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, और डिस्कशन से जो आपकी क्लैरिटी हो रही है फंडा की, उस तरह के फंडामेंटल की क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, और कोई सोचता है कि कोई कहता है कि पीपीटी मिल गई मुझे, तो इससे मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, पर वो इट इज नॉट ए करेक्ट अजम्पशन। यू आर सेइंग समथिंग सर कि जो एंड में क्वेश्चन बैंक तैयार होगा हमारा 200 या 300 क्वेश्चंस का या जो भी है, तो उसमें से कुछ रिपीट भी होंगे, तो 450 में से अगर हम 150 रिपीट हो गए तो 300 क्वेश्चन होंगे, तो वो 300 क्वेश्चन बैंक कॉमन होगा, मतलब सबके पास होगा या नहीं? जिसने जो दिया है, सपोज 350 या 400 हो गए, सारे हम कॉमन शेयर कर दें। ठीक है,
मतलब एंड ऑफ द डे हमारे पास होंगे वो मतलब सारे जो टोटल देखो टोटल इनफ्लो विल बी द कॉमन नॉलेज ऑफ एवरीवन। यस वही मेरा क्वेश्चन था। यस दैट विल बी ए कॉमन नॉलेज टू एवरीवन। और उसके बाद में मैं उसको मॉडिफाई करूंगा, काटा छांटी करके उसको आई विल यू नो, अब तो सबकी लैंग्वेज उस तरह की नहीं हो सकती ना जो कि स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। और सब बहुत रिपीट भी होंगे उसमें, Repeat मैंने भी जो होंगे, लिखा है कोई और भी पूछेगा। 60% क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे तो आधे तो वैसे ही रह गए। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए कि आप ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो कि आपके यहाँ पे जो चीजें आपने क्लैरिटी एक्वायर किया ना यस इतने डिस्कशन के बाद में, उसके बेसिस बनाओगे तो वो आपका यूनिक क्वेश्चन रहेगा। राइट सर। ठीक है, यस थैंक यू। एंड आई विल मॉडिफाई द क्वेश्चंस। पर मुझे स्ट्रक्चर मिल जाता है तो उसी के इर्द गिर्द मैं मॉडिफाई कर लूँगा। जैसे जेई में क्या होता है, जेई एडवांस में अगर कोई आपको कोचिंग में एक क्वेश्चन के टाइप के 100 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन करा देते हैं उसी के ऊपर, तो आपको मालूम है 101 वाला भी तरीके से कोई पूछेगा तो आप कर देंगे उसका आंसर, क्योंकि अभी प्रैक्टिस हो चुकी है, है ना। तो उसी तरह से कि आई विल डू सम काइंड ऑफ some modification in the questions you gave me in terms of language, in terms of the जो भी कुछ है, तो मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो थोड़ा जल्दी आसानी से हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो ओके।